السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناولز ہب۔ تو جی ہم لوگ کا جو ناول ہے الحمد سے والناس از قلم امیمہ شفیق قریشی۔ تو جی جناب آج کی ہماری اس ناول کی چلے جی پڑھتے ہیں آج کی ہماری اس ناول کی 11ویں قسط کی جانب۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ دونوں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، حاتم اس کے بالوں میں مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا۔ مطلب انہیں نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب اگر تم یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا سکتی تو کچھ بڑا بھی تو کر سکتی ہو نا۔ یہ سب میں شوقیہ طور پر کرتی رہی ہوں اور اب تمہارے لیے جتنا ہو سکتا تھا اتنا کرتی ہوں۔ اس بارے میں نے کبھی سیریس ہو کر نہیں سوچا، مگر میں نے سوچا ہے اگر تمہاری مہارتوں کو تھوڑا نکھارا جائے تو تم یقیناً کچھ بڑا کر سکتی ہو۔ حاتم بہت دور کی سوچ رہا تھا، وہ اس سے کئی کام نکلوانا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ہیکرز یا انویٹرز کی موجود نہیں تھے، مگر اینین میں اسے خاص دکھتا تھا۔ وہ ہر نئی چیز کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی، اور سب سے اہم بات اس نے نہ تو کبھی کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی کوئی ریسرچ کی تھی۔ وہ آنکھ بند کر کے حاتم کی ہر بات مان لیتی تھی، اکاؤنٹ ہیک کر کے فوراً ہی سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ اس کا اندھا اعتبار کبھی کبھی حاتم کو شرمندہ کر دیتا تھا۔ کیا اس وقت یہ سب باتیں کرنا ضروری ہے؟ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کی باتوں سے جھنجلا جاتی تھی۔ تو پھر تم ہی بتا دو کہ کیا باتیں کریں۔ حاتم شرارت سے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ اپنا موبائل تو پہلے وہ چونکا تھا، پھر اس نے مسکرا کر اینین کو اپنا موبائل تھمایا تھا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ اینین نے ماتھے پر بل ڈالے حاتم کو گھوری سے نوازا تھا۔ وہ جواباً مدھم سے مسکرایا تھا۔ اینین نے اب کی بار اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ وہ بغور اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مسلسل اس کے موبائل پر ہی مصروف تھی۔ میری سالگرہ آنے والی ہے، اس نے ڈیٹ کے ساتھ ریمائنڈر بھی سیٹ کیا تھا، میں جانتا ہوں۔ اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس نے نین کو خود سے مزید قریب کیا تھا۔ تم بھول جاؤ گے۔ موبائل اس کی جانب بڑھائے اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اپنی نین کی سالگرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنے سینے پر سے اس کا سر ہٹایا اس نے بہت محبت سے اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا۔ اب وہ فرصت سے اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ بھی بھولو تب بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا تمہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائے شکوہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سالگرہ کا سارا دن ہم ساتھ گزاریں گے، اور میں اس دن کو تمہارے لیے یادگار بنا دوں گا، تم چاہ کر بھی کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ عمر نے جذبات سے چور انداز میں اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے نین شرما گئی تھی۔ ویسے تم اتنی ذہین ہو تو تمہیں نمبرز کیوں نہیں یاد رہتے؟ یہ چیز حاتم کو ہمیشہ ہی کھٹکتی تھی۔ پتہ نہیں، مگر ویسے ہی بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہارا نمبر موبائل میں سیو ہے اور کسی کا نمبر یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ عجیب طرز سے ہنسی تھی۔ حاتم اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ٹھہرا تھا کہ نائل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کل اینین کی سالگرہ تھی اور حاتم اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کی طبیعت بھی پچھلے کچھ دنوں سے کافی بوجھل تھی۔ ابھی بھی وہ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب اٹھی تھی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ تقریباً 12 بجے اس کا جی گھبرانے لگا تھا۔ وہ ایک عجیب سی بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ اس بے سکونی کو دور کرنے کے لیے وہ بالکنی میں گئی تھی۔ وہاں کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ ادھر ادھر گھومتے ڈرائنگ روم کے باہر اس کے قدم رکے تھے۔ وجہ اندر سے کچھ مردانہ آوازوں کا آنا تھا، شاید گھر پر کوئی مہمان آیا تھا، مگر اصل حیرت کی بات یہ تھی کہ آج سے پہلے حاتم کا کوئی مہمان گھر نہیں آیا تھا۔ اگلا حملہ کب کرنا ہے؟ کسی کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کچھ دن بعد پلان کرتے ہیں کوئی بلاسٹ، مگر خیال رہے یہ مصیبت شاہین درمیان میں نہ آئے۔ حاتم کی سرد آواز سنتے ہی اینین کے قدمے تلے جیسے زمین کھسکی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا آپ صحیح اس نائل کو بیوقوف بہن کو استعمال کر رہے ہیں۔ واقعی وہ نہایت ہی بیوقوف ہے۔ اس کے تمسخر آمیز لہجے پر اینین کے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ چرچ کب جانا ہے؟ پادری آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بس کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ وہ کیا ہے نا، میری بیوی کے سامنے مجھے مسلمان بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ دونوں کہا لگا کر ہنس دیے تھے۔ اینین کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ اس پر ہنس رہے تھے۔ اس کا عمر، اس پر جان چھڑکنے والا کیسے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا تھا؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ یہ سب اس کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا جسے اس کا دل اور دماغ دونوں ہی قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ مجھ پر ہنس رہا تھا، مجھ پر۔ اینین کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ عمر نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ شکست خور حالت میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اینین پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے تھے۔ محبت کے دعوے، وہ خوبصورت وعدے، صرف جھوٹ۔ کتنی بڑی بیوقوف ہو تم اینین، کتنی بڑی بیوقوف۔ اینین نے
अपने मुंह पर थप्पड़ बरसाए थे। वो शाहीन नहीं है, नहीं है। इसकी हिचकियाँ बन गई थी। वो दहशत गर्दी में मुलव्विस है, वो गैर मुस्लिम है। इसका सारा एतबार आज चकनाचूर हुआ था। मोहब्बत लफ्ज़ से जैसे आज यकीन उठा था। वो इसे 20 समंदर में लाकर अकेला छोड़ गया था। भाई, मुझे भाई के पास जाना है। थोड़ा होश आते ही वो उठकर बैठी थी। मेरा फ़ोन कहाँ है? इसने इधर उधर मुतलाशी निगाहों से देखा था। मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। हातिम ने इसे फ़ोन लेकर दिया था, मगर कुछ दिन पहले ही वो ख़राब हो गया था। नया फ़ोन लेकर देने की हातिम ने ज़रूरत महसूस नहीं की थी और एनएन ने भी इससे कोई तकाजा नहीं किया था। लैंडलाइन से कॉल करती हूँ। नहीं, अभी उमर घर पर है और मुलाजिम आसपास है। मुझे अभी कॉल नहीं करनी चाहिए। एनएन ने अपने बढ़ते कदम वहीं रोक लिए थे। दरवाज़ा लॉक किए इसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी। दर हकीकत वो बेहद खौफज़दा थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलता जा रहा था, मगर हातिम कमरे में नहीं आया था। वो बाहर ही किसी काम से चला गया था। एनएन ने लाख शुक्र अदा किया था, नहीं, वो नहीं आया, वरना न जाने वो क्या कर गुजरती। रात के पहर वो दबे पाँव जीने उतरती लाउंज में आई थी। अब इसने कपकपाते हाथों से नंबर डायल करना शुरू किया था। बहुत याद करने पर भी इसे नाइल का नंबर याद नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? लम्हे में इसकी आंखें भीग गई थी। वो यहाँ से अकेले नहीं जा सकती थी। बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और वैसे भी वो हमेशा हातिम के साथ ही जाती थी। जहन पर बहुत ज़ोर डालने के बाद इसे किसी का नंबर याद नहीं आया था, ना किसी दोस्त और ना ही किसी अजीज़ का। मैं ये कहाँ फंस गई? सोफे पर ढहती मुसलसल सिसक रही थी। अचानक ही दिमाग में झमाका हुआ था। जहन के पर्दों पर किसी का चेहरा लहराया था। ये नंबर ख़ास तुम्हारे लिए है, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। ओके, मैं सेव कर लेती हूँ। एनएन ने अपना मोबाइल उठाए कहा था। सेव नहीं करना, ये नामुमकिन है। वो हंस दी थी। इस नामुमकिन को मैं आज मुमकिन बना कर रहूँगा। एक ख़ास टेक्निक से मैं तुम्हें ये याद करवाऊँगा। मुकाबिल चैलेंजिंग अंदाज में गोया हुआ था। अहमर। एनएन के लब फड़फड़ाए थे। बगैर एक लम्हा भी ज़ाय किए इसने अहमर का नंबर डायल किया था। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। अहमर। वो फूट फूट कर रोती थी। असर के वक्त तकरीबन मतला साफ था। अफक से बादल अब छट चुके थे। बरसात की वजह से दरख्त जमरुद रंग के दिखाई दे रहे थे। हीरे की तरह जगमगाती पानी की लड़ियाँ घास पर बिखर गई थी। वो मगरूर चाल चलता इस साफ शफाफ मैदान से गुजर रहा था। इसके पीछे 2 और लोग थे जो झुके हुए सर के साथ नहायती ताबेदारी से इसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। इसके साथ कदम मिलाकर चलने की ना तो किसी में जुर्रत थी और ना ही किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त देता था। थोड़ा आगे जाकर इसके कदम रुके थे। पीछे मौजूद एक शख्स ने फौरन घास पर झुकते बटन दबाया था। रास्ता खुल चुका था। अब दूसरे ने फौरन भागते हुए रास्ते से सारे कांटे और झाड़ियाँ हटाई थीं। आंखों पर से गॉगल्स हटाए वो तेज़ी से तहखाने के अंदर दाखिल हुआ था, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो अपने बूटों से अपने गार्ड का हाथ बुरी तरह मसल चुका है। वो अब तनी हुई गर्दन के साथ जीने फलांगता नीचे उतर रहा था। दोनों शख्स भी फौरन इसके पीछे गए थे। इसकी ट्रेनिंग इस कदर सख्त थी कि वो छोटी छोटी बातों पर दर्द महसूस नहीं करते थे और वो मगरूर शहजादा अपने सामने किसी को कराहने की इजाज़त कहाँ देता था। दिन का वक्त होने के बावजूद भी इस तहखाने में रात का मंजर, हर तरफ तारीक और सन्नाटा छाया हुआ था। सीढ़ियों से राहदारी के रास्ते में बेश कीमती कालीन बिछा हुआ था। राहदारी को मशअलों से रोशन किया गया था। दीवारों पर मुख्तलिफ और कदीम तर्ज के नुकुश बने हुए थे। ये जगह कदीम और काफ़ी पुरानी थी। ये इलाका इनके ज़ेर इस्तेमाल था। यहाँ इन लोगों के अलावा किसी शख्स का आना नामुमकिन था। इस मैदान में कदम रखना फरिश्ते अजल को दावत देने के मुतरादिफ था। यहाँ खुफिया जगह सदियों पुरानी थी। वक्त के साथ साथ यहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ की गई थी, मगर आज भी ये जगह इनके काले कारनामों का अड्डा थी। इस तहखाने में बहुत से लोगों की सिसकियाँ और आहें दफन थीं। कोट का बटन खोलते वो शहाना चाल चलते राहदारी से गुजरता। काले रंग की पैंट कोट में मलबूस, सफ़ेद रंग की शर्ट और ऊपर काले रंग की टाई लगाए वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। तीखे नक़ूश, खड़ी नाक, सियाह मगर सर्द मोहर आंखें, कसरती जसामत, वो किसी को भी चत करने की सलाहियत रखता था। राहदारी में इसके गार्ड हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़े थे। ये अदब था या खौफ, लेकिन ये इनका मामूल था। वो जब भी यहाँ आता था तो हर एक का दिल कांप उठता था, क्योंकि इसकी सफ़ा की बेरहमी से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। थोड़ा आगे जाते इसके कदम रुके थे। इसके जूतों की छाप रुकते साथ ही हर दिल लरस गया था। इसका इस तरह यूँ रुकना किसी क़यामत से कम नहीं था। इसने वही खड़े सर को हल्की जुम्बिश दिए अपने पीछे मौजूद शख्स को इशारा किया था, जिस पर इस शख्स ने फ़ौरन गन निकाल कर लोड किए निहायती अदब से इस मकरूर शहजादे के सामने पेश की थी। गन के लोड होने की आवाज़
तरफ गूंजी थी। वहाँ मौजूद सब अफराद ने अपने कदम फर्श पर मजबूत कर लिए थे। अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। सामने देखते इसने हाथ में गन पकड़े साइड पर खड़े एक गार्ड के पाँव पर मारी थी। ठा गोली की आवाज़, एक खौफ व हिरास की कैफियत पैदा हुई थी। इसने निशाना इस गार्ड की तरफ देखे बगैर लिया था। वो इस काम में माहिर था। बगैर देखे भी वो अच्छी तरह जानता था कि किसे और कहाँ गोली मारनी है। राहदारी में एक बार फिर कदमों की आवाज़ गूंजी थी। वो कदम कदम चलता इस गार्ड के बिल्कुल सामने आ रुका था। इस गार्ड के पैर से खून के फव्वारे की तरह छूटकर ज़मीन पर गिर रहा था, मगर इस सब के बावजूद वो सर झुकाए निहायती अदब से खड़ा था। इसके चेहरे पर कोई दर्द का तासुर नहीं था। 2 मिनट अपने गार्ड के पास खड़े होने के बाद इसने अपने बूट को बहुत ज़ोर से इसके बूट के ऊपर रखा था। खून इस बार अपने पूरे प्रेशर से बाहर फर्श पर गिर रहा था। आज के बाद जब मेरे अदब में खड़े हो तो दोनों पैर बराबर में रखना। इसके कान के पास सरगोशी करते वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। इसके गुजरने तक वहाँ खामोशी छाई थी, कब्रिस्तान जैसी खामोशी। इस बात का यकीन करते कि वो वहाँ से जा चुका है, सबकी ही जान में जान आई थी। वो गार्ड दर्द से गिराता हुआ फर्श पर बैठ गया था। इस सफाक शहजादे के सामने कराने का मतलब सिर्फ मौत था, दर्दनाक मौत। इनमें से किसी को भी मौत का खौफ नहीं था, मगर जिस अंदाज में वो मौत देता था सभी इस शैतान से पनाह मांगते थे। एक कमरे के बाहर रुकते एक शख्स दौड़ता हुआ इस तक आया था। निहायत एहतराम से इसके पैरों से जूते उतारे थे। नए जूतों का एक सेट सामने रखा था। इसने नागवारी से पहना था। जूते पहनने का काम वो खुद ही करता था सर। इससे पहले कि वो पीछे मौजूद गार्ड इसके लिए कमरे का दरवाज़ा खोलते, एक शख्स अंदर से दरवाज़ा खोलते बाहर आया था। अपने सामने अपने मालिक को देखकर इसने सर झुकाए अदब से इसकी खिदमत में सलाम पेश किया था। क्या बताया उसने? भारी गंभीर आवाज़ तहखाने की दर दीवार से टकराई थी। कुछ नहीं। माथे पर शिकने उभरी थी, आंखें कहर बरसाने लगी थी। तुम ये कह रहे हो कि कल रात से यहाँ पर मौजूद है और इसने अभी तक ज़ुबान नहीं खोली? वही सर्द और सफाक लहजा। हमने बहुत टॉर्चर किया, मगर अटकी सांस को बहाल करते अभी जॉर्ज ने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि ब्लैक मॉन्स्टर ने इसे गर्दन से दबोचे इसका सर दीवार में दे मारा था। क्या फ़ायदा तुम जैसे निकम्मी फौज का, जब एक शख्स की ज़बान ही नहीं खुलवा सकते। वो अब पैर दर पैर इसका सर दीवार पर मार रहा था। इस शख्स का माथा, होठ और नाक खून हो चुके थे, मगर दूसरी तरफ सफाकी की इंतहा था। रहम नाम का लफ्ज़ तो इस शख्स की डिक्शनरी में ही नहीं था। तकरीबन 7 मिनट के बाद ब्लैक मॉन्स्टर ने इसे छोड़ा था। वो अधमरी सी हालत में ज़मीन पर ढह गया था। जालिम शहजादे ने अपना बूट बहुत ज़ोर से इसके चेहरे पर रखा था। वो तड़पता सिसकता खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर ब्लैक मॉन्स्टर के आगे सारी मज़ाहमतें बेकार थी। इस शख्स की आखिरी सांस लेने के बाद इसने अपने बूट से इसे ठोकर मार कर परे धकेला था। आखिर कब तक अपने ही लोगों को सज़ा देते रहोगे? जेम्स जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, अपने सामने इस कदर अहम बंदे को मुर्दा देख इसने अफसोस से कहा था, मैंने सज़ा नहीं दी, आज़ादी दी है। अगर सज़ा देनी होती तो इसे ज़िंदा रखता। नफरत से इसकी लाश को ठुड्डा मारते हुए आगे बढ़ा था। नए जूते लेकर आओ, एक आदमी से कहते जेम्स नफ़ी में सर हिलाते ब्लैक मॉन्स्टर के पीछे गया था। वो बाकी सब की निस्बत इस उखड़ मिजाज शख्स से काफ़ी करीब था, जिसकी वजह से वो इससे खुलकर बात करने की जसारत कर सकता था, मगर इसका इन्हिसार भी ब्लैक मॉन्स्टर के मूड पर था। वो कभी इसे अर्श पर बिठा देता तो कभी फर्श पर ला पटकता था। मेरे ख्याल से वो शाहीन ही है। इसके पीछे चलते जेम्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। शाहीन इतना बेवकूफ़ नहीं कि मेरे घर तक ही पहुँच जाए। ब्लैक मॉन्स्टर ने इसकी बात हवा में उड़ाई थी। हो सकता है ये इसकी कोई चाल हो, या फिर ये सब इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए किया हो। एक दीवार पर से पेंटिंग हटाई, जेम्स ने बटन दबाया। दीवार तो इस समय तकसीम हो गई थी। अगर ऐसा है तो फिर इसने खुद पर ISI वालों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। ब्लैक मॉन्स्टर ने तमस्कुराना हंसते हुए कदम आगे बढ़ा है। दोनों के दरमियान वक्तन फ़ौक्तन कोई ना कोई बात होती रही थी। यहाँ से जेल तक का सफ़र काफ़ी लंबा था। ये तय खाना जितना कदीम था इतना ही बड़ा और पेचीदा था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये एक भूल भुलैया हो। हर दरवाजे के पीछे एक और रास्ता और हर रास्ते के आगे एक नया सफ़र। यहाँ पर एक अलग दुनिया कायम थी, जुल्म और जबर की दुनिया। इस दुनिया का मालिक एक जालिम और मगरूर शहजादा था। सभी इसे ब्लैक मॉन्स्टर के नाम से जानते थे। थोड़ा आगे जाते इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। जेब से फ़ोन निकाले इसने स्क्रीन की जानिब देखा था। इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। जेम्स ने बकौर इसके चेहरे का जायज़ा लिया था। वहाँ कोई गुस्सा, कोई सर्द मोहरी नहीं थी।
میم کی کال ہے۔ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا اور نہ ہی بلیک مانسٹر اسے اس بات کی اجازت دیتا تھا، مگر اس بار نہ جانے کیوں وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ موبائل اسکرین سے نظر ہٹائے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا۔ جیمز کی سانس وہیں رک گئی۔ اس کی پیشانی لمحے بھر میں پسینے سے تر ہوئی تھی۔ نہیں، صرف ایک ریمائنڈر تھا۔ آج اس کی سالگرہ ہے نا؟ مسکرا کر ایک بار پھر موبائل اسکرین کو محبت باش نگاہوں سے دیکھتے اس نے فون واپس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ پھر تو آپ کو اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جیمز کے کندھوں سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ سر شکر اس مغرور شخص نے برا نہیں منایا تھا، ورنہ ابھی تک اس کا سر دیوار پر مار چکا ہوتا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا، یعنی جیمز کے سوال کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ جیمز نے بھی کوئی اور سوال پوچھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اپنے جانے جہاں کا ناراض اور پھولا ہوا چہرہ یاد کرتے اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ آج کا سارا دن انہیں ساتھ گزارنا تھا، لیکن مصروفیت کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا، مگر آج رات وہ ایک یادگار رات بنانا چاہتا تھا جس کا سارا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ مسلسل موبائل پر مصروف تھی۔ میری سالگرہ آنے والی ہے۔ اس نے ڈیٹ کے ساتھ ریمائنڈر بھی سیٹ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس نے نین کو خود سے مزید قریب کیا تھا۔ تم بھول جاؤ گے۔ موبائل اس کی جانب بڑھاتی اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اپنی نین کی سالگرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنے سینے پر سے اس کا سر ہٹایا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا۔ اب وہ فرصت سے اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ بھی بھولو تب بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا تمہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائے شکوہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سالگرہ کا سارا دن ہم ساتھ گزاریں گے، اور میں اس دن کو تمہارے لیے یادگار بنا دوں گا۔ تم چاہ کر بھی کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ عمر نے جذبات سے چول انداز میں اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے نین شرما گئی تھی۔ جیل کے سامنے پہنچتے جیمز نے لاکر کھولا تھا۔ بلیک مانسٹر نے ایک طائرانہ نظر اس خالی جیل پر ڈالی تھی۔ اجازت ہے؟ جیمز نے سر جھکائے اجازت طلب کی تھی۔ اس مغرور شہزادے نے سر کو ہلکا سا خم دی، اسے اجازت دے دی تھی۔ جیمز نے کچھ ٹٹولنے کے بعد ایک جلتی مشعل کو الٹا کیا۔ ایک مخصوص جگہ پر اپنا انگوٹھا لگائے۔ جیمز تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا۔ ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بلیک مانسٹر اندر داخل ہونے کے بعد جیمز پہ اندر داخل ہوا تھا۔ کرسی پر نیم بے ہوشی حالت میں پڑے شخص کو دیکھ وہ نقوت سے ہنسا تھا۔ پاس پڑی کرسی کو گھسیٹتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اس بند کمرے میں بہت سے ہتھیار پڑے تھے، وہاں بھی بہت سے گارڈز ہاتھ بندھے کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گارڈ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گارڈ نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس نیم بے ہوش شخص کے منہ پہ الٹا دیا تھا۔ یک ٹھنڈے پانی منہ پر پڑتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس چند سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس شخص نے سوجی آنکھوں سے بمشکل سامنے بیٹھے شخص کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اسے کل رات سے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ اب ایک انگلی ہلانے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، سب کچھ اگل دو، وعدہ کرتا ہوں انعام کے طور پہ تمہیں موت دے دوں گا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے عجلت سے اپنے ہاتھ میں موجود ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تھا۔ میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ گلے سے پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر مسلسل گھڑی کی چلتی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب اس کی زبان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے اب بس اپنے دیے وقت کے گزر جانے کا انتظار تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے اپنے مالک کا حکم بجا لاتے اس شخص کا ہاتھ ٹیبل پہ رکھا، اور ٹیبل کے ایک طرف وہ شخص تھا اور دوسری طرف بلیک مانسٹر۔ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی سانس سوکھ گئی تھی۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ فکر مت کرو، اس کھیل میں ماہر ہوں۔ اس شخص نے کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ اچھا خاصا محظوظ ہوا تھا۔ اب وہ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان چاقو گزار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے بے بسی سے آنکھوں میں التجا کی تھی۔ بلیک مانسٹر نے ایک تیکھی نگاہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالے۔ ایک دم ہی چاقو پوری قوت سے اس کے ہاتھ میں کھبو دیا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے سفر کرتا میز سے آر پار ہوا تھا۔ آہ! ایک دردناک چیخ تہخانے میں گونجی تھی۔ اس مغرور شہزادے نے ایک بار پھر اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی گارڈ نے ایک شیشی لا کر رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص اگلی کارروائی
समझने की कोशिश कर रहा था। इस जालिम शख्स की मुस्कुराहट इसे बहुत कुछ समझा रही थी। वो हंसता नहीं था, इसके चेहरे पर हमेशा संजीदगी ही होती थी। मगर जब से नैन इसकी ज़िंदगी में आई थी, इसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी। वैसे ही मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। इस शीशी का ढक्कन हटाए कहर बरसाती आंखों से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? इसके हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर थोड़ा सा तेज़ाब डालते संजीदगी से पूछा था। एक बार फिर चीखें गूंजी थी, दर्दनाक चीखें। इस शख्स ने हाथ बहुत बुरी तरह से मेज़ में पेवस्त था। वह हाथ नहीं हिला सकता था। मेरे घर क्या करने आए थे? इसकी दूसरी उंगली पर नाखून पर थोड़ा सा तेज़ाब डालते अगला सवाल किया गया था। जेम्स एक साइड पर खड़ा इस शख्स की किस्मत पर अफसोस कर रहा था। अगर वो पहले मुंह खोल देता तो फिर भी सुकून की मौत नसीब होती, मगर अब इसे मौत नहीं ज़िंदगी मिलने वाली थी। ब्लैक मॉन्स्टर की दी हुई ज़िंदगी, मौत से भी बदतर ज़िंदगी। किसके लिए काम करते हो? इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर मकरूर शहजादा ने इसके तीसरे नाखून को निशाना बनाया था। ISI के लिए चौथी उंगली के नाखून को झुलसाया गया था। तेज़ाब गिरने की वजह से इसका नाखून मोम की तरह पिघल कर गिर रहा था, या फिर रॉ के लिए आखिरी उंगली पर तेज़ाब गिराते ब्लैक मॉन्स्टर ने आखिरी सवाल किया था। वो दर्द से चीखता चिल्लाता होश हवास से बेगाना हो चुका था। 3 घंटे बाद इसकी दूसरे हाथ के साथ भी यही खेल खेलना। जेम्स को ऑर्डर दी, वो वहाँ से उठा था। ध्यान रहे उस वक्त ये पूरे होश व हवास में हो। जेम्स ने अदब से सर झुकाया था। वहाँ से बाहर निकलते इसका रुख इंचार्ज रूम की तरफ था। वहाँ इनके सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड दर्ज था। सारे अकाउंट्स वही से हैंडल किए जाता था। मोबाइल एक बार फिर वाइब्रेट होने पर इसके कदम रुके थे। ये लड़की भी ना, अब की बार इसने मोबाइल के सारे रिमाइंडर्स हटाए थे। नैन ने न जाने कितने रिमाइंडर सेट किए थे। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उमर इसकी सालगिरह भूले। मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। अपना कोट कुर्सी पर रखे वो इसके पास झूले पर बैठा था। वो टेरिस पर गोल बड़े साइज के झूले पर अपना फ्रॉक फैलाए टांग ऊपर किए बैठी बहुत सुकून से नेल पेंट लगा रही थी। उठो यहाँ से, तुम इसे तोड़ दोगे। इसने बहुत ज़ोर से अपना पैर उमर को मारा था। नैन, उमर ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। इसे नैन की यह हरकत बिल्कुल पसंद न आई थी। क्या नैन, इतने मोटे हो तुम, मेरा झूला टूट जाएगा। नैन ने मुंह फुलाए इसे भी घूरी से नवाजा था। मैं मोटा नहीं हूँ, और तुमने दोबारा इस तरह पैर चलाए ना तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। इसके पैर अपने हाथों की उंगलियों से सहलाते उमर ने संजीदगी से कहा था, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी अगर तुमने बुरी निगाहों से मेरे पैरों की तरफ देखा भी तो। वो अपने पैर समेटते फिर नेल पेंट लगाने में मसरूफ़ हो गई थी। लाओ मैं लगा देता हूँ। उमर ने इसका हाथ थामते पास पड़ी नेल पेंट उठाई। फिलहाल वो इससे लड़ने का इरादा नहीं रखता था। सच बताओ, आज से पहले किस किस को नेल पेंट लगाई है तुमने? इसके काम की प्रोफेशन देख नैन ने मशकूक अंदाज से इसे घूरा था। ठीक से याद नहीं है अब। नैन ने फौरन अपना हाथ वापस खींचा था। मेरी जान, मैं इस नेल पेंट की बात नहीं कर रहा, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें ही लगाऊंगा। इसका हाथ वापस अपनी गिरफ्त में लेते उमर मुस्कुरा दिया था। मुझे भी वही नेल पेंट लगाओ जो तुम दूसरे को लगाते हो। नैन की फरमाइश पर वो एक लम्हे के लिए चौंक गया। फिर वो अचानक ही वो हंस दिया था। इसकी मुस्कुराहट ठहरी हुई और बेहद दिल फरेब थी। हंसने की वजह से इसके बाएं गाल में हल्का सा गड़ा उभरा था। नैन को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। ये जुल्म तुम्हारी नन्ही सी जान पर नहीं कर सकता। इसका गाल थपथपाते वो वहाँ से उठाता। पाँव अभी रहते हैं। नैन ने इसे याद दिलाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैर ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। वो नेल पेंट उठाते वहाँ से गया था। सर झटकते अपने चेहरे पर वापस वही सख्ती लाए। वो नॉब घुमाए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ मौजूद सब लोग अदब से खड़े हुए थे। क्या पता चला? वही सख्ती, वही शर्त मोहरी। सर कॉल्स का सारा डेटा कल ही निकाल चुकी थी, मगर कुछ कन्फ्यूज़न थी, बस इसी वजह से आपको नहीं बताया। कुर्सी से उठते मारिया ने नजरें झुकाए अदब से कहा था, इस कमरे में फाइल्स का अंबार लगा हुआ था। हर तरफ कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस रखी गई थी। वो लोग यहीं से सब ऑपरेट करते थे। कैसी कन्फ्यूज़न! इसके माथे पर शिकनी उभरी थी। ब्लैक मॉन्स्टर वो अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते मारिया ने इन्हें सख्ती से मिस किया था। क्या वो अब की बार दहाड़ा था। सबके दिल ही कांप उठे थे। वो आखिरी कॉल आपके घर ही से की गई थी। सख्ती से आंखें मीचे मारिया ने कह ही डाला, क्या बकवास कर रही हो तुम? पास पड़ी कुर्सी को पटकते गुर्राया था। जेम्स को भी अभी बाहर आरिफ ने सारी सूरत हाल से आगाह किया था। वो भागता हुआ इंचार्ज रूम की तरफ बढ़ा था। इसने आने में देर कर दी थी। ये सच है, मारिया मिनमिनाई थी। अगर ये झूठ हुआ तो अपने अंजाम से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। इसके लहजे में
हनूज सख्ती थी। इसी अंजाम के खौफ से वह कल से हर 1000 बार फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर चुकी थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थे, मगर जिस हकीकत का इंकशाफ इस पर हुआ था, इसका यकीन करना बेहद मुश्किल था। कौन है वो? किस मुलाजिम में इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ गद्दारी करें? मारिया का दिल बस बाहर आने को था। जो इंकशाफ इस पर हुआ था, सामने खड़े दरिंदे को बताना बेहद मुश्किल था, मगर इसे बताना ज़रूरी भी था। कॉल आपके घर के लैंडलाइन से की गई है। अपने खुश्क होठों पर जबान फेरते मारिया को इस बार बहुत आहिस्तगी से मिनमिनाई थी। कौन है वो? बोलो, कौन है वो? जेम्स ने नफ़ी में सर हिलाते मारिया को कुछ भी कहने से रोका था। बोलो, कौन है वो? इस दहाड़ पर जेम्स भी सहम गया था। कोई लड़की है। इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद भी आज मारिया को अपने अंजाम से डर लग रहा था। वो चाहकर भी वो नाम नहीं ले पा रही थी। नाम तो होगा ना, बताओ क्या नाम है उसका? इसका सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। अगर मारिया इसकी करीबी साथियों में से ना होती तो अब तक वो इसे गोलियों से भून चुका होता। नैन। मारिया की जबान खोलने की देर थी कि ब्लैक मॉन्स्टर ने इसे गले से दबोचा दीवार से लगाया था। किसका नाम लिया तुमने? हाँ, वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया था। मारिया को अपनी सांस रुकते महसूस हुई थी। मारिया सच कह रही ब्लैक मॉन्स्टर? आरिफ की आवाज़ पर इसके हाथों की गिरफ्त एक लम्हे के लिए ढीली पड़ी थी। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? मारिया को परे धकेलते वो तेज़ी से आरिफ की जानिब बढ़ा था। आरिफ ने खामोशी से आगे बढ़कर कंप्यूटर रिकॉर्डिंग ऑन की थी। निस्वानी आवाज़ सुनते ही वो साकित हो गया था। ठीक 2 मिनट बाद आरिफ ने रिकॉर्डिंग बंद की थी। अब सबकी नज़रें ही इस जालिम और सफाक शहजादे पर थी, जो कि बिल्कुल खामोश खड़ा था। अचानक ही अपनी मुट्ठियों को भींचे वो तेज़ी से बाहर गया था। इसकी रगें तनी हुई थी, आंख बरसा रही थी। वहाँ मौजूद सभी अफराद इस मासूम फरिश्ता सिफत लड़की के अंजाम पर अफसरदा थे। वो बेमकसद न जाने कितने घंटे सड़कों पर गाड़ी ड्राइव करता रहा। एक जगह आकर इसने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी की पुश से टेक लगाए इसकी आंख से एक आंसू गिरा था। कोई इसे इस बेबसी की हालत में देखता तो कभी यकीन न करता। वो ही ब्लैक मॉन्स्टर। मगर सच यही था कि इसके इश्क ने इसे धोखा दिया था। नैन ने इसे धोखा दिया था। वो गद्दार थी। वो आज वो टूट चुका था। इसकी ज़िंदगी ने इसे तोड़ दिया था। कब तक नाराज़ रहने का इरादा है? वो बालकनी में मुंह फुलाए खड़ी थी। उमर कब से इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज वो इसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। तुम्हें मेरी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जाओ, अपने काम करो जाकर। वो कल सारी रात घर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो सख्त खफा थी। जितना नखरा तुम मुझे दिखाती हो ना, इसका 1% भी कोई और दिखाती ना तो अब तक कब्र में उतार चुका होता मैं इसे। यानी तुम मान रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई है? उमर ने बेबसी से गहरी सांस खारिज की थी। अब इसे लड़ने के लिए नया बहाना मिल चुका था। बस बहुत हो गया, अब ख़त्म करो इस नाराज़गी को। इसने नैन को कमर से खींच कर खुद से करीब किया था। वो नाजुक कली कटी हुई डोर की मानिंद इसके चौड़े सीने से आ टकराई थी। उमर ने इसके लबों पर उंगली रखे सख्त तासुरात से इसे घोरा था। वो मुंह बिसोरे सर झुका गई थी। वो हमेशा ही इसके तमाम नाज़ नखरे उठाता था, मगर कभी कभी इससे शदीद गुस्सा आ जाता था और नैन समझदार बीवियों की तरह इसके बिगड़ते तेवर देखकर मोहतात हो जाती थी। एक अच्छी सी स्माइल दो। अपनी उंगलियों की पोरों से इसकी ठोड़ी को ऊपर उठाए उमर ने हुक्म सादिर किया था। अपने होठों को बामुश्किल मुस्कुराहट में डाले नैन ने उमर की सियाह आंखों में देखा था। वो ना चाहते हुए भी हंस दिया था। नैन तुम भी ना। उमर ने मोहब्बत पाश अंदाज में इसकी नाक से अपनी नाक मिस की थी। वो शर्माते हुए इसके सीने में सर छुपा गई थी। आज के बाद तुम वक्त पे घर आओगे, जो हुक्म। उसका सर अपने सीने पर से हटाते उमर ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। इसकी नज़रों की तपिश किताब न लाते नैन ने अपनी सुनहरी आंखें झुकाई थी। इसकी इस अदा पर उमर के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। अब वो बगौर इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। गुलाबी और सफ़ेद रंगत की सुनहरी झुकी हुई आंखें, घनी सियाह पलके, सतवा नाक और इसकी नज़रें नैन की सुराहीदार गर्दन का तवाफ कर रही थी। उमर ने अपनी शहादत की उंगली से इसकी गर्दन को छुआ था। नैन ने मज़ाहमत की थी, जिस पर उमर ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली थी। मुझे काम है। इधर उधर नजरें घुमाए वो बहाना तलाश कर रही थी। क्या काम है? उमर ने इसकी बौखलाहट से महसूस हुआ था। वो अभी सोचा नहीं है मैंने। इसने फौरन इस ज़बान दांतों तले दबाई थी। उमर दिल खोल कर हंसा था। नैन तुम भी ना। उमर की नज़रें एक बार भी इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उमर की आंखों ने इसकी पुरशफाफ पेशानी और इसकी सतवा नाक तक का सफ़र तय किया था। फिर इसकी निगाह इसके गुलाल होते गालों पर पड़ी थी। इसके बाद इसकी पंखड़ियों जैसे लबों पर। इसके होठ कुदरती तौर पे गुलाबी थे और इसके होठों की बनावट कुछ इस तरह थी कि वो ना वो बहुत ज़्यादा पतले थे और ना ही बहुत ज़्यादा भरे हुए। अब उमर की नज़रों ने इसके लबों से इसकी ठोड़ी तक का सफ़र तय किया था। इसकी ठोड़ी का तिल इसे रुकने पर मजबूर कर किया था। ठोड़ी के दरमियान गहरा सियाह तिल। उमर ने दाएं हाथ से अंगूठे से इसे थोड़ा रब सा किया था।
اس کا اگلا عمل وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ عمر مجھے کام ہے۔ ابھی نین نے اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ عمر نے پورے وسوخ سے اپنے لب اس کی ٹھوڑی پر رکھے تھے۔ یہ میرا حق ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عمر نے اس کی کان کے پاس میٹھی سرگوشی کی تھی۔ وہ اس دل کا دیوانہ تھا اور ویسے بھی وہ بے انتہا حسین تھی۔ وہ اس کی ٹھوڑی کا یہ دل اسے مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ ویسے تم کل رات تھے کہا۔ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا کر اس کی گرفت سے رہائی پانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کسی کو زندگی دے رہا تھا۔ نین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ڈاکٹر کب سے بن گئے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں نین، میں ایک سفاک درندہ ہوں جو لوگوں کو سزا کے طور پر زندگی دیتا ہے۔ عمر کی بات اس کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کی گفتگو کرتا تھا۔ شروع میں وہ ناراض ہو جاتی تھی اور پھر اس کی باتیں مذاق میں اڑا دیتی تھی، مگر وہ اب جھنجھلا جاتی تھی۔ ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اور انعام کے طور پر کیا دیتے ہوں؟ عمر کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑنے پر اس کو جیسے سانس آئی تھی۔ اگر یہ گرفت تھوڑی اور ڈھیلی ہو جائے تو وہ آرام سے بھاگ سکتی تھی۔ موت! عمر کی بات پر نین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ گرفت کب واپس سخت ہوئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھو تم سے؟ ہاں پوچھو میری جان۔ اب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے بال ہلکے بھورے تھے، کمر تک آتے تھے، گھنے مگر بھورے بال۔ اس کے فیس کٹ پر یہ بال بہت سوٹ کرتے تھے۔ تم میرے لیے سزا اور انعام میں سے کیا چنو گے؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ تم میرا سب کچھ ہو نین، ہمیں تا عمر ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں انعام دوں گا اور میں تمہیں موت دوں گا۔ تمہیں زندگی دیکھ کر میں تمہیں تکلیف ہرگز نہیں دوں گا، بلکہ موت دیکھ کر میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے نین کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اس نے بغور عمر کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سنجیدگی تھی، یعنی وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اب بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے پرے دھکیلتی وہاں سے گئی تھی اور مسکرا کر سر جھٹکتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ نین! وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں یک دم سرخ ہوئی تھی۔ کچھ دیر گہری سانس لینے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ نین کو تیار کرو، بالکل ایک نئی نویلی دلہن کی طرح۔ فون پر حکم صادر کرتے اس نے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کار سے باہر نکلتے غصے سے آگے بڑھا۔ یہ اس کی حویلی تھی، یہاں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اور ایک شخص اس طرح اس کی حویلی کے اندر داخل ہونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اصل چیز جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شخص کو یہاں پہنچنے کی رسائی دینا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا زینے پھلنگتا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بلا کی سختی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ سختی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب اس نے ہی کروایا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں وہ سجی سنوری بستر پہ بیٹھی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ اس طرح کی حالت میں اپنے کامدار جوڑے سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر پل کے جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کے بے تحاشا حسن کے آگے وہ جیسے سب بھول گیا تھا۔ عمر یہ سب کیوں؟ اس سے پہلے وہ اپنی سریلی آواز میں کچھ کہتی اس تک پہنچتے عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ نین! اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے عمر مدہوش ہوا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی ہو نا تم، اتنی خوبصورت تو تم شادی کی پہلی رات بھی نہیں لگی تھی۔ عمر نے اس کی ناک میں پہنی نت کو چھوتے کہا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے عمر، بہت زیادہ، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ یوں اس طرح تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر کے ملازم صرف اس سفاک شخص کی سنتے تھے۔ اس کے حکم کے آگے نین کی تمام مزاحمتوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے میری نین کو؟ اسے خود سے مزید قریب کرتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے اور شاید بخار بھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ عمر نے بھی اسے خود سے دور جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے کہا تھا۔ میں بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس سے دور ہوئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ۔ عمر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ویسے آج ناراض نہیں ہوئی تم مجھ سے؟ ناراض کس بات پر؟ میں کل رات گھر نہیں آیا اور ہم نے تمہاری سالگرہ بھی نہیں منائی۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ یقیناً تم مصروف ہوں گے۔ نین نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس شخص کی قربت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا جو انکشاف اس پر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عمر کا لمس اسے جلتے کوئلے کی جتنی تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی نہیں۔ اسے کلائی سے تھامے عمر نے اسے روکا تھا۔ میں نے کہا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ نین نے اس کا ہاتھ فوراً ہی جھٹک دیا تھا۔ اسے اب بس کسی بھی طرح اس ظالم اور سفاک شخص کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آنکھوں میں بسانے دو، کچھ اس طرح کے میں تمہیں کبھی نہ بھول سکوں۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ ویسے تم پوچھو گے نہیں کہ کل رات میں کہاں تھا؟ چلو چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل رات ہمارے گھر کوئی گھس آیا تھا۔ نین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں فرق پڑا تھا۔ تم جانتی ہو نین میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر نے بغور اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سزا دی۔
मैंने इसे ज़िंदगी दी, वो जिंदा है मगर इसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। नैन की आंखों से गर्म पानी उबलना शुरू हुआ था, लेकिन हैरत की बात है कि आखिर वो अंदर आया कैसे। उमर ने एक बार फिर इसके कान के पास सरगोशी की थी। नैन की सांस वहीं रुक गई थी। इसने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। वो इसे धोखा नहीं दे सकती थी। वो हद से ज़्यादा चालाक था। वो एक लड़की ने कॉल करके बुलाया उसे। इसकी आवाज़ हूबहू तुम्हारी जैसी थी। उमर ने सख्ती से इसकी कलाई दबोचे कहा था। सारे घर में जगह जगह वॉइस रिकॉर्ड्स लगे हुए थे। नैन इस बात से अनजान थी और इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लैंडलाइन से कॉल करके की थी। क्यों नैन, क्यों? कहाँ कमी रह गई थी मुझसे? ऐसा कौन सा सितम ढाया मैंने तुम पर जो तुम मदद के लिए गैर को बुला रही हो? इसकी आंखों में लाल खराशे वाज़ेह थी। छोड़ो मुझे। वो तकलीफ से किरा उठी थी। तुम्हें तो नंबर्स याद नहीं रहते, फिर इसका नंबर कैसे याद रह गया? कलाई में मौजूद चूड़ियाँ टूटने की वजह से इसके दोनों हाथों से खून रस रहा था, मगर उमर को आज किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अपने घर से किसी को फ़ोन कर लेती, माफ़ कर देता तुम्हें, मगर एक अनजान शख्स को क्यों लेकर आई तुम हमारे दरमियान? वो बेकसूर है, उसे छोड़ दो। नैन ने गोया हार मानी थी। अब जब सामने आ ही चुका था तो मज़ीद झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने उसे बुलाया था। जो सज़ा देनी है मुझे दो, उसे छोड़ दो। उमर ने एक झटके से इसे बिस्तर पर धक्का दिया। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो नैन। तुम आखिर कैसे मुझे धोखा दे सकती हो? आखिर कैसे किसी गैर को मुझ पर तरजीह दे सकती हो? और क्यों मदद के लिए पुकार रही थी उसे? बोलो नैन, क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? वो गुर्राया था। गुस्से की वजह से इसकी माथे की नसें फूल गई थी। क्योंकि दम घुटता है मेरा यहाँ पर नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। वो एकदम गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। उमर शिजदर रह गया था। मैं धोखेबाज नहीं, तुम धोखेबाज हो। वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है जिसे मदद के लिए बुलाया था मैंने, और वो बेचारा मेरे लिए यहाँ तक आ गया। उसे छोड़ दो, वो बेकसूर है। मैंने बेबसी से इल्तिजा की थी। कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? इसकी बाकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते उमर ने अपने मतलब की बात पूछी थी। जो शख्स एक बार इसके शिकंजे में फंस गया वो इसे कैसे छोड़ सकता था? शहादत दो। नैन के लब आहिस्तगी से हिले थे। क्या? उमर नहीं समझ सका था। शहादत दो कि तुम मुसलमान हो। नैन की इस बात पर उमर के पैर मुंजमद हो गए थे। बैठकर बात करते, वो मामले की संगीनी को अच्छी तरह समझ चुका था। अब कोई बात नहीं होगी, अब तुम सिर्फ शहादत दोगे। उमर शहादत दो, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इसका पूरा वजूद हाँप रहा था। ये किस किस्म का बचकाना सवाल है? तुमसे किसने ये सब कहा? ये सब अहम नहीं है, तुम बस शहादत दो। सब कुछ अपने कानों से सुनने के बावजूद भी इसने एक आँख से कहा था, नैन में। उमर शहादत दो, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल है। उमर गवाही दो। वो मुसलसल चीखने चिल्लाने की वजह से इसका सारा वजूद हाँप रहा था। इसकी आंखें आंसुओं से तर थी और लब कपा रहे थे। नहीं दूंगा मैं गवाही। वो ना जाने कितनी देर सब्र का दामन थामे खड़ा था। अब इसका सब्र जवाब दे गया था। नैन, हम बैठकर बात कर लेते हैं। उमर ने गहरी सांस खारिज करते खुद को रिलैक्स किया था। तुम गवाही नहीं दोगे। इसने सुर्ख माइल आंखों से उमर की जानिब देखा था। मैं खुदा को मानता हूँ, दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द आज अपने इश्क के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नैन, मैं मुसलमान हूँ और तुम प्लीज़ भूल जाओ सब कुछ जो तुमने किया। मैं भी भूल जाता हूँ। इतनी हसीन रात है, हम क्यों इसे बर्बाद कर रहे हैं? इसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया था कि नैन ने इसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने का कहा था। अगर मुसलमान हो तो गवाही देकर बात ख़त्म करो। वो अपनी बात पर मिस्र थी। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उम्र, अपने घर वाले, सब कुछ। वापसी के सारे दर खुद पर बंद कर दिए। अपनों को तकलीफ दी, यहाँ तक कि वह कोई अब मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता। उमर, प्लीज़ गवाही दे दो। मेरी सारी ज़िंदगी का इन्हिसार तुम्हारी एक गवाही पर है। वो हिचकियों समेत रोती हुई बिस्तर पर बैठी थी। नैन मेरी जान, मेरी बात सुनो। उमर इसके करीब गए। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। आखिर तुम गवाही क्यों नहीं देते? वो चीखते हुए उठ खड़ी हुई थी। नहीं दूंगा मैं गवाही, नहीं दूंगा, नहीं हूँ मैं मुसलमान। खड़े होते साथ ही वो भी चीखा था। नैन के कदम लड़खड़ाए थे। इसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे। मज़हब हमारे दरमियान कहाँ से आ गया? उमर ने इसे छूने की कोशिश की। वो नफ़ी में सर हिलाते पीछे हटी थी। वो ये सब पहले ही अपने कानों से सुन चुकी थी, मगर इसे इस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन अब इसकी खुशफहमी भी दूर हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा क्यों उमर, क्यों? इसके गले से फंसी आवाज़ निकल रही थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया नैन। सच तो यह है कि मज़हब को लेकर हमारे दरमियान कभी कोई बात ही नहीं हुई। तुमने मुझसे कभी
اس حوالے سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ نین نے بے یقینی سی شفاق شخص کی طرف دیکھا۔ کتنی آسانی سے وہ خود کو ہر چیز سے بری ذمہ کر چکا تھا۔ کیوں کھیلا تم نے میری زندگی کے ساتھ؟ کیوں میرے احساسات اور جذبات کا مذاق اڑایا؟ آخری کیوں چھوا تم نے مجھے؟ جب تم مسلمان نہیں تھے تو کیوں آئی میرے قریب؟ وہ ایک دم بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ وہ اس کا گریباں پکڑے اسے سوال کر رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ شدید تیش کی حالت میں عمر نے اسے بستر پہ دھکا دیا تھا۔ وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد کیسے کسی عورت کو اپنا گریبان پکڑنا برداشت کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت اس کی نین ہی کیوں نہ ہو؟ کیا مسلمان کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ تمہارے خیال سے تم مسلمان ہو؟ عمر نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس قسم کی تم ڈریسنگ کرتی ہو، کیا مسلمان ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ بڑے عجیب ہوتے ہو تم مسلمان، صرف چند ہی چیزوں میں تم لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے تو مجھے فخر ہے کہ میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں۔ وہ نہایت سرد اور شفاف انداز سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ نین کی آنکھوں میں سے جیسے تمام دھند اب چھٹنے لگی تھی۔ میں نے کیا ہے پیدائش سے مکاشفہ تک کا سفر۔ کیا تم نے کیا ہے الحمد سے والناس تک کا سفر؟ عمر نے ایک تیکھی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی تھی۔ نہیں کیا نا؟ نین کی خاموشی سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مسلمان ہو؟ نین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ جاؤ پہلے جا کر اپنا سفر مکمل کرو، پھر بات کرنا مجھ سے۔ اس کی دہاڑ پر وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی کن پٹی سہلاتے اپنے غصے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نین میری جان۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو ریلیکس کرتے اس کے پاس بستر پہ آ بیٹھا تھا۔ وہ بت بنے نظریں جھکائے مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ عمر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ نین کا ہاتھ جلتے انگارے کی طرح گرم تھا، ایسے جیسے اس کا سارا وجود جھلس گیا ہو۔ نین، عمر نے اس کے قریب ہوتے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تم دہشت گردی میں ملوث ہو۔ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ کیا جان چکی تھی؟ تم نے مجھ سے وہ سارے اکاؤنٹس ہیک کروائے، وہ سارے پروجیکٹس جو میں نے تمہارے کہنے پر کیے، تم اس سب کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے روندی آواز میں پوچھا تھا۔ نین میں نے تمہارے کہنے پہ نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے مجھے اور اس ملک کو دھوکہ دیا۔ وہ ہچکیوں سمیت روتی تھی۔ تم نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا نین کے اندر؟ عمر نے انکار نہیں کیا تھا۔ کوئی جھوٹی تسلی، کوئی صفائی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ سب اس ملک کے لیے کیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ سب ISI کے لیے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم ایک ISI ایجنٹ ہو۔ مجھے لگا تھا تم رک کیوں گئی؟ جملہ مکمل کرو۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ عمر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو نین، کیا لگا تھا تمہیں؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے تمہارا لمس تکلیف دے رہا ہے۔ وہ آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو نین، خبردار جو دوبارہ کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تم۔ عمر نے اسے بالوں سے دبوچے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے گرا اٹھی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رکی تھی۔ میں کیا؟ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا نین؟ اس کا منہ دبوچے عمر نے نہایت ہی صفاقے سے پوچھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم شاہین ہو۔ نین نے ابھی اپنا جملہ ادا ہی کیا تھا کہ عمر نے غصے سے آنکھ بگولا ہوتے ایک بار پھر اسے بستر پہ دھکا دیا تھا۔ شاہین شاہین شاہین، عذاب بنا دی ہے اس شخص نے میری زندگی۔ آخر کیوں ہر جگہ آ جاتا ہے؟ آخر یہ کیوں ہمیشہ میری خوشیاں برباد کر دیتا ہے؟ عمر نے پاس پڑی میز پر پڑے سامان کو نیچے گرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نین؟ وہ ایک بار پھر سے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ ڈری سہمی اس شخص کی جنونیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکول میں بم پلانٹ کروایا تھا۔ نین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ مگر اس شاہی نے میرے سارے کھیل کو برباد کر دیا۔ سوچو نین، کتنا مزہ آتا نا اگر وہ بلاسٹ ہو جاتا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ دیوانوں کی طرح اپنے کارستانی بتا رہا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار، خون چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ سب مجھے بہت سکون دیتا ہے، بہت زیادہ۔ اب جب تم سب جان ہی چکی ہو تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آخرکار ہمیں تعامل ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ نین نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ شاہین تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عمر
आंखें उमर की आंखें एक बार फिर आग बरसाने लगी थी। इसका नाम मत लो। वो इसके जब्त का मार रही थी। क्यों डरते हो उससे? नैन ने एक तीखी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली थी। ब्लैक मॉन्स्टर किसी से नहीं डरता। सुर्खी माइल आंखों से वो उठ खड़ा हुआ था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगी। वो अपना लहंगा संभालती इसके करीब गई थी। उमर ने सर तपैर इसकी हसीन सरापी को देखा था। अगले ही लम्हे इसके लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ था। कैसे करोगी तुम ये? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या हूँ। तुम मुझे 1000 दरवाज़ों में भी कैद रखोगे ना, मैं तब भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे पास ताकत है और तुम जानते हो मेरी ताकत क्या है। वो इस्तेज़ाइया हंसी थी। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक। उमर ने अपनी पेशानी छूते कहा था, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। उमर ने नैन को साइड स्माइल पास की थी। तुम मुझे बर्बाद कर सकती हो, लेकिन इसने सांस लेने का वक्फा लिया था। अगर तुम जिंदा ही ना रहो तो? नैन ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। तुम बेहद हसीन हो नैन, इतनी हसीन के मैं 1-2 साल मज़ीद तुम्हारे साथ गुजार सकता था, मगर अब। उमर ने गहरी सांस खारिज की अपने कोट की जेब से गन निकाली थी। नैन का सांस वहीं रुक गया था। 1 हफ्ते से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता मैं किसी भी लड़की को। तुम खुशकिस्मत हो नैन, जो तुम्हें इतने महीनों तक मेरा साथ और मेरी कुर्बत नसीब हुई। नैन का दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। कितनी आसानी से वो शख्स इसकी ज़ात के पर खचे उड़ा गया था। एक लम्हे में वो इसे बेमोल कर गया था। तुम मुझे नहीं मार सकते। इसे यकीन था, एतमाद था, वो इसे नहीं मार सकता था। तुम्हारी गलत फहमी है। उमर ने गन लोड की इसके दिल का मकाम का निशाना बांधा था। नैन ने बेयकीनी सी नफ़ी में सर हिलाया था। चलो शाबाश, कलमा पढ़ लो। वो हिचकियों समेत रोती थी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यह आखिरी कोशिश थी, आखिरी उम्मीद बेइंतहा। मगर क्या करूँ नैन, तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक ख़तरा हो। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो बेहद मजबूर हो। चलो वक्त ज़ाय मत करो, जल्दी से कलमा पढ़ लो। इतना बुरा नहीं हूँ मैं कि तुम्हें कलमा भी न पढ़ने दूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। वो हिचकियों के दरमियान मुश्किल बोल सकी थी। ये मान था उस शख्स पर, इस पाक रिश्ते पर। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है नैन, जल्दी से शहादत दो। उमर ने उजलत भरे अंदाज में हाथ में पहने रेस्ट वॉच की तरफ देखा था। नैन जल्दी कलमा पढ़ो। अब की बार उम्र का लहजा थोड़ा सख्त था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? शहादत दो। इसकी दहाड़ पर वो सहम गई थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी उमर, तुम्हें हर चीज़ का हिसाब देना होगा। नैन ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे थे। नैन शहादत दो। थोड़ी देर पहले जो अल्फाज दोहरा रही थी, अब ठीक वही अल्फाज उमर दोहरा रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नैन ने आंखें बंद की, कपकपाते लबों से कलमा पढ़ा था। उमर ने ट्रिगर पे हाथ रखा था। एक लम्हे के लिए इसका हाथ कांपा था। इस सफाक शख्स का, जो बगैर देखे भी अच्छी तरह जानता था किसे कहा और किसे मानना है। इसके जहन में वो तमाम लम्हात घूमने लगे थे जो इसने और नैन ने साथ गुजारे थे। वो कुछ देर आंखें नीचे खड़ी रही, फिर इसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली। वो नज़रें झुकाए खड़ा था। गन इसके हाथ में थी, मगर अब इसका रुख नैन की जानिब नहीं था। वो मुसलसल गहरी गहरी सांस ले रहा था। मुझे पता था तुम ये नहीं कर सकते। वो मध्यम सा मुस्कुराई थी। उमर ने सुर्खी माइल आंखों से इसकी तरफ देखा था। तुम बहुत हसीन लग रहे हो नैन। इस कदर हुस्न पर मुंह दिखाई तो बनती है ना। उमर की आंख से एक आंसू गिरा था। मैं तुम्हारी मुंह दिखाई में मौत दूंगा। इसे बगैर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर उमर ने एक बार फिर पर गन तानी थी। अलविदा नैन। इसने ट्रिगर पर हाथ रखे गोली चला दी थी। ठा। वो आंखों में बेयकीनी का तासुले बेजान होते वजूद के साथ ज़मीन बोस हुई थी। इस सर्द और वहशत ज़दा रात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आज एक आशिक के हाथों एक महबूब फना हुआ था। एक सियाह रात की चांदनी इस दर्दनाक अंजाम की गवाह थी। कमरे में बिछी हुई सफ़ेद रंग की कालीन सुर्ख हो चुकी थी। वो तड़पते सिसकते आंखें मूंद गई थी। हर तरफ खून ही खून था। वही कदम कदम चलता नैन के करीब आया था। इसके बेसूद वजूद को करीब एक घुटना ज़मीन पर टिकाए इसने इसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, मगर इसे छूने की सकत अब इसमें नहीं थी। उमर ने सख्ती से आंखें मीची थी। इसकी आंख से एक आंसू गिर कर नैन के खून में जज्ब हुआ था। इसकी आंख का पानी नैन के वजूद से बहते खून के आगे बेमोल था हो चुका था। नैन। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। आज सोग की रात थी, इश्क के फना होने की सोग की। तुम इस कमरे को रोज़ क्यों सफाई करती हूँ? आज आसमान अब आलूद था। मौसम की बढ़ती खनकी की वजह से स्नेहा शाल ओढ़ी हुई थी। साहब जी का हुक्म है। इसके बाद के जवाब में मुलाजमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। तुम्हारे साहब जी क्या बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन से? वो न जाने कितनी बार तमाम मुलाजमों से नैन के मुतालिक सुन चुकी थी। अब इसे इससे मिलने का बेहद इश्तियाक था। वो जान छिड़कते हैं वानिया मैडम पर। इनको एक खरोज भी आए ना तो साहब जी ऐसे तड़पते जैसे दर्द इन्हें हो रहा हो। स्नेहा हमेशा ही ऐसे जुमले सुनकर हैरत ज़दा हो जाती थी कि इसके भाइयों ने कभी इससे इस किस्म की मोहब्बत नहीं दी थी। वैसे यहाँ
वैसे वो यहाँ क्यों نہیں رہتی مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ شکر کریں کہ وہ یہاں نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ اسنیہا کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو پھر آپ یہاں نہ ہوتی۔ بستر کی چادر بدلتے ملازمہ نے عجیب انداز میں کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ میڈم جی کہ وہ کچھ عجیب ہے، بہت پر اسرار، ان کا دل صاف نہیں ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے 5 سال ہو گئے، میں انہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ صاحب جی غصے کے تیز ضرور ہیں مگر دل کے صاف ہے۔ مگر وانیہ میڈم تو سمجھ کے باہر ہیں، کبھی اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ پوچھو ہی مت، اور کبھی اتنی بے رحم کہ یقین ہی نہ ہے۔ بس اللہ نے انہیں ہدایت دے۔ ملازمہ بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ تمہیں یہاں کام کرتے 5 سال ہو گئے، پھر بھی تم انہی کی برائی کرو جن کا کھاتی ہوں۔ اسنیہا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ بے شک وہ براہ راست اینین سے نہیں ملی تھی، مگر تھی تو وہ نائل کی بہن نہ۔ وہ نائل کی بہن کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ میڈم معاف کیجیے گا میڈم، مگر آپ بہت بھولی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کی اکلوتی ننند آپ کے سارے سسرالی رشتوں کی کمی پوری کر سکتی۔ ہو گئی نا صفائی، اب جاؤ یہاں سے۔ اسنیہا کو اس ملازمہ پر شدید غصہ آیا تھا۔ اگر نائل اس قسم کی گفتگو سن لیتا تو ملازمہ کے ساتھ اس کی بھی کلاس لگنی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اسنیہا نے ساری کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں وانیہ کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اب اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی تھی۔ کچھ چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد اسے ایک تصویر ملی تھی۔ نائل کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ یقیناً وانیہ ہی تھی۔ اسنیہا مبہوت انداز میں اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے وانیہ بے حد حسین لگی تھی۔ نائل اور اس کی آنکھیں ایک جیسی تھی، دلکش سنہری آنکھیں۔ اس کے دل سے وانیہ کے لیے ہمیشہ کی طرح دعا ہی نکلی تھی۔ وہ نائل کے لیے خاص تھی تو پھر اس کے لیے بھی تھی۔ وہ اچھی طرح سے نائل کی اپنی بہن کے لیے محبت کی شدت کو جانتی تھی۔ وانیہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، مختصر یہ کہ اس کے لیے دنیا تک تباہ کر سکتا تھا۔ رات بہت تاریک اور ڈراؤنی تھی۔ ہر ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ہر گھنٹہ ایک دن کے برابر معلوم ہوتا تھا، مگر وقت پھر بھی گزر گیا تھا۔ تارے دن میں روشنی میں کہیں دور جا سوئے تھے۔ ابھرتے سورج نے تاریکی کو اجالے میں بدل دیا تھا، مگر دن کا یہ اجالا کسی کی تاریک زندگی کو نہیں بدل سکا تھا۔ پردوں کے پٹ گرائے، کوئی اندھیر کمرے میں بستر سے ٹیک لگائے شکست خور حالت میں فرش پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی، آنکھیں سرخ مگر ساکت تھیں۔ گزری ایک رات نے اسے لاغر اور بے بس کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں نین گری تھی، جہاں اس کا قیمتی خون گرا تھا۔ حاتم کپ کپاتے ہاتھوں سے اس جگہ کو چھوا تھا۔ وہاں اب خون نہیں تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ نین اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ماضی کی یاد کسی جھروکی کی طرح اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ عمر تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 8 سالہ نین نے ڈبڈبائی آواز سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ چاہتے ہیں میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جاؤں، لیکن تم فکر مت کرو، میں واپس آؤں گا۔ حاتم نے اسے یقین دلایا تھا۔ کب؟ آنسو چھلکنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ سالوں بعد، جب میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب شخص بن جاؤں گا۔ وہ خود بھی اپنوں سے دور جانے پر اداس تھا، مگر اپنے باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلنی تھی۔ تب تک میں کیا کروں گی؟ نازک پلکوں کی بار توڑے آنسو گالوں پر لڑکنا شروع ہو چکے تھے۔ تب تک تم بھی پڑھ لکھ کر بڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے نہیں پڑھنا۔ اب وہ سسک کر رو رہی تھی۔ میں کہوں گا تب بھی نہیں۔ حاتم کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس عمر میں وہ اینین کے لیے محبت کے جذبات نہیں سہی، مگر دوستی کے جذبات ضرور رکھتا تھا۔ وہ اس کے لیے خاص تھی۔ تھوڑا سا پڑھ لوں گی، آنکھیں رگڑتے اس نے جس معصومیت سے کہا تھا۔ حاتم کے لیے کہا ضبط کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا نہیں، تمہیں بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اوکے، پڑھ لوں گی۔ اس نے بہت برے دل سے حامی بھری تھی۔ تم میرے دوست ہو نین، اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کیا تم بھی اپنی عمر کو یاد رکھو گی؟ حاتم نے ایک آنچ سے پوچھا تھا۔ نین عمر کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اور اچھا، نین کس کی ہے؟ عمر نے لب دبائے پوچھا تھا۔ صرف عمر کی۔ وہ کسی روبوٹ کے مانند بولی تھی۔ اور عمر کس کا ہے؟ حاتم نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ صرف نین کا۔ یہ چیز حاتم نے ہی سے رٹوائی تھی۔ اس نے یہ سب مذاق میں کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ کہیں نہ کہیں اس 1.5 فٹ کی ٹڈی کو بہت اونچا مقام دے چکا تھا۔ ماضی کو یاد کرتے حاتم نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ تم نائل کو کال کر لیتی، میں سمجھ جاتا، مگر تم نے ایک غیر کو مدد کے لیے بلایا۔ حاتم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے کہا تھا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے لاتے ایک الٹ پلٹ کے دیکھا۔ سرخی مائل آنکھوں سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک ڈراور سے گن نکالے۔ حاتم نے غصے سے اس میں گولیاں ڈالی تھی۔ اب اس نے ایک ہاتھ گن پکڑے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ یہی وہ ہاتھ تھا جس سے اس نے اینین کو گولی ماری تھی۔ ٹریگر ہاتھ پر جمائے حاتم نے گولی چلائی تھی۔ ماری جو نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی، گولی کی آواز سنتے وہ بھاگ کر اوپر آئی تھی۔ ڈیوڈ! وہ چیختی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی، مگر تب تک حاتم دوسری گولی چلا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بنجر تھی، ان میں کوئی درد کا تاثر نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بلیک مانسٹر؟
मारिया ने इसके हाथ से गन छीनना चाही थी, मगर हातिम तो जैसे होश खो बैठा था। 1 हफ्ते से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता मैं किसी भी लड़की को। तुम खुशकिस्मत हो नैन, जो तुम्हें इतने महीनों तक मेरा साथ और मेरी कुर्बत नसीब हुई। हातिम ने तीसरी गोली चलाई थी। मारिया मुसलसल चीख रही थी, मगर हातिम रुका नहीं था। मैं तुम्हें मुंह दिखाई में मौत दूंगा। चलो शाबाश, कलमा पढ़ लो। 6 की 6 गोलियां हाथ में उतार कर इसने गन फर्श पर फेंकी थी। आंखें अब भी बेतासुर थीं। तुमने क्या किया डेविड? अगर तकलीफ ही पहुंचानी तो तुम मुझे पहुंचा देते, यू खुद को क्यों? इसकी तकलीफ पर वो तड़प उठी थी। इसे किसी तीसरे को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। वो आहिस्तगी से गोया हुआ था। अगर कोई और वक्त होता तो वो मारिया को अपने इतने करीब तो दूर कमरे में भी आने ना देता। मारिया को यहाँ बदर नहीं भेजा था। हातिम इससे नाराज था, मगर बाकी सब से वो कांटेक्ट में थे। वो दूर रहकर भी हर चीज़ से वाकिफ था। अब जबकि हातिम बिल्कुल टूट चुका था, बदर को मारिया का ख्याल आया था। इसने मारिया को इसे अपनी तरफ माइल करने को कहा था। वो तो इस ही की ताक में थी। बिल्कुल इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारिया ने इसके हाथ से गोलियां निकालते 2 गोली इसके हाथ में पेवस्त हुई थी और बाकी 4 छूकर गुजरी थी। मैंने शेष किया था। वो बोझल कदमों से बिस्तर पर आकर बैठा था। तुमने गलत किया। इसके हाथ पर पट्टी बांधी। मारिया ने एहतियात से इसका हाथ अपने हाथ में थामा था। तुम ठीक कहती हो, मैंने वाकई गलत किया। भूल गया था वो आखिर है तो नाइल की बहन ही ना। अचानक इसकी आंखों में लहू उतरा था। लेकिन मेरी बीवी भी तो थी। वो इस वक्त बेबसी की इंतहा पर था। भूल जाओ उसे। मारिया ने आहिस्तगी से इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं हूं ना। इसके मजीद करीब हुई थी। अचानक ही इसका हाथ झटके से झटकते वो उठ खड़ा हुआ था। इस कमरे से इसकी सारी चीज़ें निकलवा दो। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कुछ भी ना दिखे। गाड़ी की चाबी उठाए वो बाहर की जानी पड़ा था। आप कहाँ जा रहे हैं? हातिम के बढ़ते कदम रुके थे। साथ ही साथ मारिया का दिल की धड़कनें भी। इसे पीछे से आवाज़ देने का अंजाम वो अच्छे से जानती थी। कब्रिस्तान। जवाब दिए वो तेज़ी से बाहर निकला था। मारिया को हैरत के शदीद झटका लगा था। बुरा मनाने या सज़ा देने के बजाय हातिम ने इसे जवाब दिया था। इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो मदहोशी के आलम में बिस्तर पर ढह गई थी। सुर्ख गुलाब की पत्तियां अब भी बिस्तर पर बिखरी हुई थी। एक पत्ती को हाथ में उठाते मारिया ने इसकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। ये सेज बहुत जल्द मेरी होगी। वो महसूर कुन अंदाज में हंसी थी। वह खाली नज़रों से बहुत देर तक कब्र को देखता रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने कब्र पर ताज़ा गुलाब के फूल चढ़ाए थे। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद बगैर किसी तासुर के वहाँ से उठा था। गाड़ी में बैठते सबसे पहले इसने बदर को कॉल मिलाई थी। मुझे आपकी ज़रूरत है बाबा, मैं बहुत जल्द आपको लेने आ रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद हातिम ने कहर बरसाती निगाहों से गाड़ी स्टार्ट की थी। अब इस अहमर को अंजाम तक पहुंचाना था। कौन हो तुम? इसके मुंह पर पानी का गिलास फेंकते ही वो सामने कुर्सी पर विराजमान हुआ था। सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो नकाज ज़्यादा लहजे में बमुश्किल बोल पा रहा था। ये तुम भी जानते हो, मैं भी। तुम झूठ बोल रहे हो। एक आम सा स्टूडेंट इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। इसकी आंखें सूजी हुई थी और होठ फटे हुए। मेरे घर कैसे पहुँचे? रास्ता भटक गया था। हातिम के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। अपनी जगह से उठते हातिम इसके करीब गया था। यानी तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। हातिम ने इसकी एक उंगली नाखून को हाथ से मसला था। वो किरा उठा था। इसकी उंगली के नाखून पहले ही तकरीबन पिघल चुके थे। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को मार दिया, अपनी नैन की जान ले ली मैंने। अहमद ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? इसका जर्द पड़ता चेहरा देख हातिम महसूस हुआ था। तुम अपनी बीवी को मारो या फिर किसी को भी, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बस मुझे जाने दो। वो गुस्सा जब्त करता गोया हुआ था। तुम तो एकदम से बहादुर हो गए। कहा गया तुम्हारी आंखों का वो खौफ, वो दूर अंदेश था। देखो मुझे छोड़ दो। अहमद ने फौरन नज़र चुराई थी। क्या नाम है तुम्हारा? हातिम ने महसूस होते पूछा था। अहमद। जवाब हमेशा की तरह वही था। तुम मुझे पक्के खिलाड़ी लगते हो। तुम जानबूझ कर यहाँ आए हो और जानबूझ कर पकड़े गए हो। मुझे पूरा यकीन है। हातिम वापस अपनी कुर्सी पर टांग जमाए बैठा था। तुम इस तहखाने तक आना चाहते थे ना? हातिम ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मुझ तक पहुंचना चाहते थे ना? तुम ब्लैक मॉन्स्टर को देखना चाहते थे, लेकिन एक बात भूल गए तुम। एक बार जो ब्लैक मॉन्स्टर को देख लेता वो फिर जिंदा नहीं रहता। हातिम ने टेबल पर जोर से हाथ मारा था। निहायत ही बुज़दिल हो तुम। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी बीवी का सहारा लिया। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं जानता। तुम्हारे साथ बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं तो तुम्हें मारने आया था, लेकिन अब इरादा बदल दिया। देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। हातिम ने सुलगती निगाहों से इसकी जानिब देखा था। अहमद भी इसे ही देख रहा था। अस्पताल के बंद कमरे में न जाने कितनी देर बेसुध पड़ी रही थी। सुबह के तकरीबन 10 बजे से होश आया था। पलकों का बोझ जैसे बढ़ गया था। इसे आंखें खोलने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। आंखें खुलते इसकी नज़र छत पर पड़ी। इसे हर चीज़ तारीख नजर आ रही थी। आंखों के बसारत ठीक होने में कुछ वक्त लगा था। गैर शनासा आवाज़ें
सुनते इसने हरकत करने की कोशिश की थी, मगर इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी था। एक हाथ में ड्रॉप तो दूसरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इसने लाग़त हालत में वापस आंख बंद करके, मगर आवाज़ें अब भी बराबर सुनाई दे रही थी। कमज़ोर बहुत है मगर ठीक हो जाएगी। प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इस वजह से कम नुकसान हुआ। डॉक्टर और नर्स आपस में बात कर रहे थे। अनैन के हाथों में हरकत हुई थी। इसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया था। कपकपाते हाथों से इसने अपने हाथ पेट पर रखा था। मैं प्रेग्नेंट, बस इतना ही बोल पाई थी। बाहर नाइल और मोहसिन इस तरह की हालत में बैठे थे। इन्हें रात से सुबह हो गई थी मगर अनैन को होश नहीं आया था। आपकी बहन को होश आ गया है। नर्स के बताने की देर थी, वो भागकर अंदर आ गया। वानिया, मेरा बच्चा। नाइल तड़प कर इसकी जानिब बढ़ा था। मेरी जान, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नाइल ने इसके सर पर बोसा देते फिक्रमंदी से पूछा था। भाई, इतने अरसे बाद नाइल को सामने देख इसे शिद्दत से रोना आया था। नहीं मेरी जान, ऐसे मत रो। नाइल ने फ़ौरन से इसके आंसू पोंछे थे। वो बिस्तर पर चित लेटी हुई थी। कमज़ोरी के बायस वो उठ नहीं पा रही थी। मैं नाफरमान हूँ ना, जो लड़कियाँ नाफरमान होती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। इसने सिसकते हुए अपना हाथ उठाने की कोशिश की थी। नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा मत कहो। एहतियात से इसका हाथ थामते वो लबों से लगा गया था। इसके हाथ में अब भी ड्रिप लगी हुई थी। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाई? वो तो मुझे मौत देने वाला था ना, तो फिर ज़िंदगी क्यों दी? वो सिसकी थी। इसने मुझ पर गोली चलाई भाई, सीने पर नहीं कंधे पर। वह बिलक बिलक कर रो थी। वो तो कहता था मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं देख सकता, फिर इसने कैसे मुझ पर गोली चला दी? बस मेरा बच्चा, ऐसा मत रो। मैं इससे हर चीज़ का हिसाब लूँगा। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाल सहलाते हैं। नाइल इसे तसल्ली देना चाहिए थी। झूठा है, वो फरेबी। आपको पता है भाई, इसने मेरा इस्तेमाल किया। रोने की वजह से इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वानिया, नाइल फ़ौरन घबरा गया था। मुझे ये ज़िंदगी और ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। डॉक्टर। इसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र नाइल ने चिल्लाकर डॉक्टर को आवाज़ दी थी। डॉक्टर के आने के बाद अनैन का मुआयना किया गया था। इसका बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हुई थी। डॉक्टर ने नाइल को फ़िलहाल किसी भी किस्म की ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ बरतने का कहा था जिससे इसके दिमाग पर जोर पड़े। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो कॉरिडोर में कब से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, जबकि दूसरी तरफ मोहसिन कुर्सी पर बैठा इसे अफसोस से देख रहा था। नाइल, रिलैक्स हो जाओ। मोहसिन ने वहीं बैठे बैठे निहायत ही धीमे लहजे में कहा था। नाइल के पास जाकर इसे तसल्ली देने की गलती इसने हरगिज़ नहीं की थी। वो आखिर समझता क्या है खुद को? इसी दिन के लिए मना किया था मैंने, मगर वानिया ने मेरी सुनी ही नहीं। मुझे पता था वो इसे तोड़ देगा। नाइल का गुस्सा सवानेज़े पर था। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर हातिम ने वानिया पे गोली क्यों चलाई? मोहसिन की ये बात शुरू से ही खटक रही थी। वो और नाइल रात के वक्त साथ ही थे जब अस्पताल से नाइल को कॉल पर वानिया की खबर दी गई। इसे समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? वो शख्स है ही घटिया, अंधा कर दिया है इसे ताकत के नशे ने। तनफ़ुस से सर झटकते वो मोहसिन के पास आ बैठा था। अस्पताल में मुसलसल मरीजों की आमदरफ्त लगी हुई थी, मगर वो हिस्सा पुरसुकून था। नाइल को अपनी बहन का सुकून बहुत बेहद अजीज़ था। हम दोनों ही हातिम की वानिया के लिए दीवानगी को अच्छी तरह जानते हैं, मगर इसने इतना बड़ा कदम उठाया तो यकीनन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। मेरी बहन अस्पताल में पड़ी है और तुमको इस बेशरम इंसान की साइड ले रहे हो। नाइल ने खूंखार निगाहों से इसे घूरा था। नहीं, साइड नहीं ले रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो उठकर इससे कोई 10 कदम दूर खड़ा हुआ। मबादा कहीं वो सर ही ना फाड़ दें। कि नाइल तक कचलाते पूछा था कि वो तो है घटिया तरीन इंसान, बल्कि डैश डैश डैश। मौके पर बयान बदल कर मोहसिन ने अपना हाथ पैर बचा लिए थे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना। अब वो अच्छी दोस्तों की तरह इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मैं इसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतारूंगा। वो तैश की हालत में उठ खड़ा हुआ था। तुम पागल हो गए हो क्या? इसे आगे बढ़ते देख मोहसिन ने इसे रोका था। मेरे रास्ते में मत आओ मोहसिन, इसे हर चीज़ का हिसाब देना होगा। अभी वानिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम किसी और दिन हिसाब ले लेना। मोहसिन इसे रिलैक्स करना चाहता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। इसके सर पर इस वक्त खून सवार था। बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके रुक जाने पर मोहसिन ने शुक्र का कलमा पड़ा था। अनैन की कुछ हालत संभलने पर वो साशा को इसके पास छोड़कर घर गया था। स्नेहा ने न जाने कितनी कॉल्स की थी, मगर नाइल को किसी चीज़ का होश नहीं था। अपनी बहन के आगे इसे कभी कुछ नहीं दिखता था। आप कहाँ थे आप नाइल? मैं कितना फिक्रमंद थी, आपको अंदाज़ा भी है। इसके कमरे में आते ही वो फट पड़ी थी। स्नेहा की जान रात से ही सूली पर टंगी हुई थी। नाइल पहले भी कई दफ़ा घर से बाहर रहता था, मगर वो इसे एक मैसेज ज़रूर कर देता था। लेकिन आज वह अनैन की परेशानी में सब भूल गया था। बैठो यहाँ पर। नाइल ने इसे शानों से थामे पुरसुकून करना चाहा। मुझे नहीं बैठना, मुझे पहले जवाब दे कि आप कहाँ थे? इसके हाथ पर झटकती वो चिल्ला उठी थी। अपनी बहन के पास था मैं, वो अस्पताल में है। स्नेहा बिल्कुल सुन हो गई थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं है?
आपकी बहन तो लंदन में थी ना, वो वापस आ गई है। गहरी सांस खारिज करते नाइल बिस्तर पर बैठा था। आई एम सॉरी, वो ठीक तो है ना? इसके करीब बैठती स्नेहा ने नरमी से इसके हाथ पर हाथ रखा था। कितनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे। इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते नाइल ने इसकी आंखों में देखा था। क्या मुझे अब भी बताने की ज़रूरत है? वो उल्टा सवाल कर रही थी। नाइल का इस मौके पर यह सवाल इसे थोड़ा अजीब लगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसने नज़रें चुराते कहा था। मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। अगर आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं ना। आप बेफिक्र रहें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, स्नेहा से यकीन दिलाते कहा था। वानिया इस वक्त जहनी इंतशार का शिकार है। डॉक्टर ने कहा कि मैं इन्हें जहनी अजियत से दूर रखूं। स्नेहा तुम्हें जाना होगा। इसने बलाकर कह ही दिया। वो बिल्कुल दंग रह गई थी। तो क्या इसे जहनी अजियत कह रहा था? देखो स्नेहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें वापस फार्म हाउस जाना होगा। वानिया तुम्हें यहाँ देखेगी तो मुझसे सवाल करेगी और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने इतनी मुश्किल से इनका भरोसा वापस जीता है। मैं इन्हें फिर से खोना नहीं चाहता। सिर्फ चंद दिन। मैं वादा करता हूँ जैसे हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी निकाह वाली बात इनके जहन में है। तुम समझ रही हो ना? इसकी जानिब मुड़े नाइल ने बहुत मान से कहा था। वो कुछ देर से देखती रही थी, फिर बगैर कुछ कहे वो बिस्तर से उठी थी। स्नेहा, नाइल भी से पुकारता हुआ उठ खड़ा हुआ था। पैकिंग कर रही हूँ, छोड़ आएगा। गले से अंदर आंसू उतारते हुए मुश्किल बोल पाई थी। थैंक यू सो मच। नाइल ने खुश होते इसके दोनों हाथ थामे थे। मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर समझोगी। इसके गाल थपथपाते वो चेंज करने गया था। काश कभी आपने भी मुझे समझने की कोशिश की होती। आंखों में आई नमी को अंदर उतारते वो अलमारी की जानी पड़ी थी। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त पसंद आएगी। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी किया करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चले जी अगले किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।